numerous supplements in the market. Which ones are for me? Are they even worth it? Hello. Are you also a vegetarian born in an Indian family like I am? Then I'm damn sure तुम्हारी diet होगी पराठा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही and a lot of salad. And when I go back in time, when maybe I was in my primary classes, जब हम balanced diet पढ़ते थे, हमने actually यही पढ़ा है कि तुम ये सारे meals खा रहे हो, then congratulations, you are doing a balanced diet. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ट्रैक करना किसी ने सिखाया ही नहीं, एंड स्पेशली इन इंडियन हाउस होल्ड. मेरे घर की भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं मम्मा प्रोटीन सप्लीमेंट ले ले या फिर मैं विटामिन डी ले लूं, आई थिंक आई एम डेफिशिएंट इन दैट. सो शी इज लाइक, एंड स्पेसिफिकली माय पेरेंट्स आर लाइक, डब्बे वाला प्रोटीन नहीं खाते, सप्लीमेंट्स ना बना, दे आर बैड फॉर योर हेल्थ. I mean, seriously, you are saying that the paratha which we make in the morning, which has a lot of oil, मैं उस पराठे की बात कर रही हूँ, that is definitely healthy और हमें शुरू से खा रहे हैं, and protein और डब्बे वाले supplements are unhealthy. I mean, that is, Indian households are made like that, most of the Indian households. And as a girl who is suffering from PCOS from the last 2 years, insulin sensitivity, trying to lose a lot of weight while keeping her skin healthy and plump and keeping her hairs long, I have been taking a number of supplements from last 1 year, which are definitely helping me first to lose weight, to keep my skin plump, hair healthy, and definitely helping out in my overall well-being. So I'll be sharing all the supplements I'm taking today, and my aim is to educate you कि कौन सा supplement किस केस में लेना चाहिए. But disclaimer, I would suggest कि first of all sit with your doctor and talk about your deficiencies, what you feel, get all the tests done, what your doctor prescribes to you, and then start taking any supplements. जो भी supplements मैं ले रही हूँ, एक दो के अलावा मेरे पहले blood test हुए थे, and then my doctor suggested me those supplements. So yeah, I hope my YouTube family is doing very good, and let's start the video. Okay, so number one supplement is always a protein. This is the protein I'm taking from last 1 year now. This is Muscle Blaze ka Isolate. It has 27 grams of protein per serve and around 123 calories. ये सबसे easy तरीका अपनी diet में protein add करने का, especially if you're vegetarian. And आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए is तुम्हारा जितना भी बॉडी वेट है into 1. See, I have heard कि 1.2 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 से मल्टीप्लाई करो, बट इफ यू आर वेरी फिजिकली एक्टिव, लाइक जैसे फार्मर्स होते थे पुराने टाइम पे, तो तुम डेफिनेटली 1.5 से मल्टीप्लाई करके लो. बट अगर तुम नॉर्मल जिम जाते हो या ज्यादा रिगरस वर्कआउट नहीं कर रहे, जस्ट नॉर्मल मॉडरेट वर्कआउट, देन तुम अपने बॉडी वेट जितना भी प्रोटीन लोगे दैट इज ओके, बट इंक्लूड प्रोटीन. अगर तुम्हारा डाइट से पूरा हो रहा है, लाइक सोया चंक्स, पनीर, दालें, चावल, दाल आर नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स, यू हैव टू ऑलवेज पेयर इट अप विद राइस. बट अगर तुम्हारा नॉर्मल घर के खाने से प्रोटीन पूरा हो रहा है, देन बहुत अच्छी बात है. अगर तुम हाई बॉडी वेट पे हो मेरी तरह, so I take around 110 grams of protein per day, and this helps me a lot to keep my protein goal in check. So yeah, ये मेरा number 1 supplement था. तुम जिम जाते हो नहीं जाते हो, you can include this supplement. इसके लिए डॉक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं है. So yeah, let's go to the next supplement. Alright, coming to supplement number 2, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. This is a creatine monohydrate. This is from GNC. ये unflavored है, and one I have is from Muscle Blaze. This is in the flavor mixed berries. So this is a very good supplement, and you know what? Creatine is the most studied supplement. तो देखो, सबसे पहले ladies ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो that creatine will make you muscular like a man. No, physiologically men and women are different, but creatine is an excellent supplement when it comes to building lean muscle mass, then your mental activity awareness and active recovery after the gym. तो ये बहुत अच्छा supplement है, and this is the most studied supplement. कैसे किडनीज खराब होती हैं? Well, this is a myth. इससे ऐसा कुछ नहीं होता. Just make sure कि तुम 4 लीटर पानी दिन का पियो, और पानी तो वैसे भी पीना चाहिए ना, स्किन को प्लम्प और हाइड्रेट बनाता है. Well, water is the cheapest supplement. So yeah, हम क्रिएटिन की बात कर रहे थे. क्रिएटिन is wonderful. इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा unless your kidneys are fine. हाँ, अगर तुम्हारा किडनीज का ऑनगोइंग कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आई वुड नॉट रिकमेंड क्रिएटिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के. बट अगर तुम्हारे सारे KFT, LFT सारे टेस्ट सब तुम्हारे ठीक है, तो तुम डेफिनेटली क्रिएटिन ले सकते हो. एंड अ सेफ डोसेज इज 3 to 5 ग्राम्स. इसके साथ एक स्कूप आता है, वो 3 to 5 ग्राम्स का ही होता है. एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस रिजल्ट्स. तुम हेवी लिफ्ट कर पाओगे जिम में, प्लस तुम्हारी रिकवरी जल्दी होने लगेगी, एंड देन यू नो तुम्हें जिम में जाते हुए एकदम एक्टिव फील होगा, एंड तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा. तो दिस सप्लीमेंट हेल्प्स इन ऑल ऑफ दैट. तो तुम इसको डेफिनेटली ले सकते हो. वेल, कमिंग टू आवर नेक्स्ट सप्लीमेंट,
दिस इज विटामिन डी एंड ये मुझे मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। सो ऐसा ना मुझे बहुत वीकनेस फील होती थी जिम करने के बाद, मूड स्विंग्स होते थे, तो तब मेरा विटामिन डी का टेस्ट किया था डॉक्टर ने। टेस्ट का नाम कुछ 25 से शुरू होता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी। तुम भी अपना टेस्ट कराओ अगर तुम्हें मूड स्विंग्स होते हैं, वीकनेस फील होती है बॉडी में, और नीज में या फिर कहीं भी बोन्स में दर्द होता है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम विटामिन डी में डेफिसिट हो सकते हो। एंड मैं जो ये कैप्सूल्स लेती हूँ, दीज आर 60,000 IU के कैप्सूल्स। IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट। इसको मैं हफ्ते में एक बार लेती हूँ और ये मुझे लिटरली 100 रुपीज का 4 कैप्सूल्स, महीने का मतलब जो मेरा सप्लीमेंट है वो मुझे 100 रुपए में पड़ा है लिटरली। एंड विटामिन डी हेल्प्स अलॉट विद योर बोन स्ट्रेंथ। जो तुम्हारे फूड में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फूड से। ट्राई करो कि इसको केटो के साथ पेयर करो, बहुत अच्छा काम करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स विद योर वीकनेस, जो तुम्हें ना लेथार्जिक होते हो, तुम्हें पड़े रहने का मन करता है, तो तुम्हें डेफिनेटली विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो इसको डेफिनेटली इंक्लूड करो टेस्ट के बाद। एंड इट हेल्प्स विद योर इम्यूनिटी एंड मूड स्विंग्स एज वेल। तो ये वन ऑफ द मोस्ट टेकन सप्लीमेंट है बाय द इंडियंस, क्योंकि वो डेफिसिट होता है और डॉक्टर्स भी इसको डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं। अपने टेस्ट कराओ और आज ही लेना शुरू कर दो, वरना बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट पे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, विटामिन डी को हमेशा फैट सॉल्यूबल मील के साथ लेना। जिस भी मील में तुम्हारे फैट हो, जैसे पनीर खाया तुमने, अपने खाने में घी डाला है, तो कुछ फैट होना चाहिए तुम्हारे मील में। सबसे अच्छे से जो तुम्हारा विटामिन डी अब्सॉर्ब होता है वो हमेशा एक फैट सॉल्यूबल मील के साथ होता है। अब हम अपना नेक्स्ट सप्लीमेंट देखते हैं। Alright, next up we have is a very trending supplement and this is our omega-3 जो मैं कंज्यूम करती हूँ। This is from this brand Slow and this is a decent brand when it comes to supplements। ये मुझे कुछ 1000 रुपए में या 900 रुपए में पड़ता है। I'll paste a picture over here and इसमें हमारी EPA and DHA की क्वांटिटी है 1324 mg, like the total omega-3 fatty acids इसमें है 1324 mg। So अब हमें जब भी omega-3 लेना होता है, हमें EPA and DHA देखना होता है। EPA and DHA क्या होता है? These are our long chain omega acids जो कि किस में हेल्प करते हैं बेसिकली। Why is omega-3 necessary? So omega-3 fatty acids are very necessary for your heart health, brain health, inflammation in the body, joints में कोई inflammation है, body pain हो रही है उसमें, and then your skin health, hair health, हर चीज में omega-3 is one of the best supplements when it comes to the supplement list। और हम बोलते हैं वेजिटेरियंस की हमें flax seeds, pumpkin seeds इसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है omega-3, बट तुम्हें कितना मतलब भर के flax seeds कंज्यूम करने पड़ेंगे अगर तुम्हें डेली डोसेज 1000 mg omega-3 लेनी है, तो which is not at all healthy for a individual। तो डेफिनेटली तुम सप्लीमेंटेशन ले सकते हो एंड ये डॉक्टर से मैं कहूंगी एक बार डिस्कस कर लो। वैसे इतनी जरूरत नहीं है, डॉक्टर ही इसको रेकमेंड करते हैं, बट मैं फिर भी फॉर अ सेफर साइड बोलूंगी यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि डॉक्टर क्या मैं ये ले सकती हूँ, एंड आई एम श्योर डॉक्टर नहीं मना करेंगे। सो अब तुम नॉन वेजिटेरियन अगर हो तो तुम्हें फिश से मिल जाता है omega-3, प्रॉन्स में भी होता है, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट फॉर अ वेजिटेरियन ये इट्स द बेस्ट। तुम कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बस EPA DHA ध्यान रखना कि 1000 mg हो, उससे कम ना हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तुम्हें ये लेना तो ये ले सकते हो। बाकी एक दो ब्रांड्स और है, जैसे नेचुरल टीम का मैंने देखा था omega-3 ठीक ठाक है, और एक और स्विसे करके ब्रांड है उसका भी ठीक है, बट मुझे सबसे अच्छा ये लगा। इसके बाद कोई फिशी बर्ब्स भी नहीं आती, सो मैं तो यही लेती रहूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट omega-3, जितना तुम्हें पता होना चाहिए। और इसको भी ना तुम मील के बाद ही लो। अगर तुम बहुत लाइट मील के साथ इसको लोगे ना तो एकदम ऐसे फिशी से बर्ब्स फील होंगे, जो कि इसमें बहुत कम है, बट स्टिल मैं प्रेफर करती हूँ। मैं मॉर्निंग में स्मूदी बनाती हूँ ओट्स, प्रोटीन एंड ये सब डाल के, तो मैं उसके साथ इसको पेयर करती हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सप्लीमेंट। माय PCOS girlies, the next supplement is a boon for you and this is the triple magnesium complex। ये again स्लो से है। इसका जो सर्विंग साइज है दैट इज 2 सॉफ्ट जेल्स पर डे, तो ये मुझे महीना चलता है। ये मुझे कुछ 1000 रुपए का पड़ा था। एंड मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सप्लीमेंट्स। मैग्नीशियम हेल्प्स विद योर इन्फ्लेमेशन, योर कॉर्टिसोल, जो तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको काम डाउन करने में ये हेल्प करता है। जो तुम्हें पीरियड से पहले PMS होता है उसमें तुम्हें चिड़चिड़ा फील होता है और तुम्हें एकदम चिड़चिड़ा डिप्रेशन जैसा फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, और जो मूड स्विंग्स होते हैं, बेसिकली इट रियली हेल्प्स विद दैट अगर तुम इसको कंसिस्टेंटली लेते हो तो। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन लोअरिंग योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करता है, और अगर डेफिनेटली इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक होगी तो ये PCOS के लिए बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आएगा तो जो PCOS में तुम्हें हेयर्स आ जाते हैं या जॉलाइन एक्ने होते हैं, है ना, उसमें बहुत अच्छे
से ये हेल्प करता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है स्पेशली फॉर द PCOS, तुम इसको ले सकते हो। और हाँ, मैग्नीशियम लेते हुए दो चीजें देखना, एक डेरिवेटिव इसका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक होता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसको मत लेना बिकॉज उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, जस्ट अराउंड 4%। तो ऑलवेज गो फॉर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तुम जरूरी नहीं है स्लो का लो, तुम कोई भी ले सकते हो, बट हाँ जब भी तुम लोगे इंग्रेडिएंट्स में एलिमेंटल मैग्नीशियम देखना कितना है। जैसे इसमें 220 ग्राम है, 220 mg है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गोल्स, जो भी मैंने तुम्हें बताया, इन्फ्लेमेशन, लोअरिंग योर कॉर्टिसोल एंड एवरीथिंग। तो तुम बस एलिमेंटल मैग्नीशियम देखना कितना है, मैं यहाँ लिस्ट लगा दूंगी कितना होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। तो तुम इसको डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट ऑप्शनल सप्लीमेंट्स पे चलते हैं। वेल, जो सप्लीमेंट्स मैंने तुम्हें अभी तक दिखाए हैं, दोज वर द मैंडेटरी सप्लीमेंट्स जिसको मैं डेली लेती हूँ विदाउट एनी बहाना, मतलब दे आर द नॉन नेगोशिएबल्स फॉर मी, द प्रोटीन, क्रिएटिन, ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम। अब हम आते हैं ऑप्शनल सप्लीमेंट्स में, जो कि तुम नहीं भी लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारी हेल्थ से वो बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले मेरे पास है ये HK वाइटल्स का मरीन कोलाजन, ये खत्म हो चुका है। मेरे पास इसका दूसरी टब ऑलरेडी मैं रिस्टॉक कर चुकी हूँ। दिस इज HK वाइटल्स का मरीन कोलाजन। इट हैज विटामिन C, मरीन कोलाजन पेप्टाइड, विटामिन E एंड हाइलुरोनिक एसिड इन इट। बेसिकली दिस इज फॉर योर यूथफुल एंड ग्लोइंग स्किन। देखो, कोलाजन तुम अपने 25 या 24 ईयर्स से जब तुम हो ना, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट इट, क्योंकि स्किन का कोलाजन डेप्लीट होने लगता है तब। प्लस कोलाजन ऑल्सो हेल्प्स विद योर जॉइंट्स एंड बोन्स, बट दिस इज बेसिकली मेड फॉर योर स्किन। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी सप्लीमेंट, बट अगर तुम्हें वो विद इन वाला ग्लो पसंद है ना, कि तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्टर और प्लम्प दिखे और ऐसा मतलब एफर्टलेसली ब्यूटीफुल दिखे, तो इट हेल्प्स विद दैट। ये लगा लो 40% ही हेल्प करता है। बाकी इज योर डाइट एंड योर स्किन केयर, कितना पानी पीते हो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम मेरी तरह यू वांट योर स्किन टू बी प्लम्प एंड ग्लोई, तो ये जस्ट एड ऑन है, उसके लिए तुम डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। ये मुझे कुछ 700-800 का पड़ा था और ये मुझे मंथली चल जाएगा, लाइक एक महीने में एक बार लेती हूँ मैं ये। तो दिस इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट। अब हम नेक्स्ट सप्लीमेंट पे चलते हैं विच इज ऑल्सो ऑप्शनल। देखो, ये मेरा ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट है। दिस इज अगेन फ्रॉम HK वाइटल्स। इसको मैं ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ और एक और मैं इसकी ऐसे बॉटल खत्म कर चुकी हूँ। दिस वाज माय सेकंड बॉटल। इसमें 15 टेबलेट्स आती हैं और इसको हमें मॉर्निंग में लेना होता है। मे बी आई एम जजिंग इट टू अर्ली, बट मुझे इससे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखा। आई वोंट रिकमेंड कि तुम इसको, देखो ग्लूटाथियोन का काम क्या होता है, टू मेक योर स्किन ब्राइटर, बट आई थिंक वो तुम्हारी डाइट, कोलाजन, एक्सरसाइज, योर लाइफस्टाइल, उससे बहुत इजीली हो जाएगा। यू डोंट नीड समथिंग लाइक ग्लूटाथियोन टू डू दैट। इसको बोला गया कि एटलीस्ट 3 months लगते हैं रिजल्ट्स दिखाने में, और मेरे को सिर्फ 1.5 month हुआ है लेते हुए। मे बी आई एम जजिंग इट टू अर्ली, बट आई वोंट रिकमेंड यू। ये मुझे 700 की 15 टैबलेट्स आई थी सिर्फ, तो महीने का लगा लो 1400। You can always, invest those money in your protein, magnesium, omega. तो this is not very worth it. You can definitely skip it. Yeah. अब एक प्रो टिप क्या, प्रो सप्लीमेंट है, ये भी मैं ऑन ऑल्टरनेट डेज लेती हूँ। स्पेशली जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए ये सप्लीमेंट है। सो दिस इज जिंक सप्लीमेंट। दिस इज जिट केयर। ये तुम्हें कुछ 250 रुपए में मिल जाएगा फार्मेसी शॉप से, एंड इसको ऑल्टरनेट डेज लो या फिर हफ्ते में 2 बार लो। जिसको एक्ने होता है, इट्स अ बून फॉर यू। ये तुम्हारे एक्ने के साथ, ये जिंक का सप्लीमेंट है, इट हेल्प्स विद योर एक्ने, तो तुम इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। डॉक्टर से पूछना मत भूलना। और यही मेरे कुछ सप्लीमेंट थे। मेरा सारा बेड अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो लुक एट इट, सारा मैंने सप्लीमेंट से भर दिया है, इधर भी और इधर भी। बट या दैट वाज इट। कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हें सप्लीमेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, डॉक्टर के बिना पूछे मत लेना। इन सप्लीमेंट्स ने मेरे रूटीन में सिर्फ एक एड ऑन रोल प्ले किया है। मैं सिर्फ इन पे निर्भर नहीं रहती फॉर माई डाइट या फॉर माई वेल बींग। दीज आर जस्ट इन एड ऑन्स। और तुम्हें डेफिनेटली, यू आर अ वेजिटेरियन, प्रोटीन नंबर 1 तुम्हें लेना ही लेना चाहिए। सेकेंडली विटामिन D, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। सो या दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो, ड्रॉप डाउन द कमेंट, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।